ہفتے والے دن سب کام چھوڑ کر صرف یا محمد یا اللہ پڑھ لینا، ایک دن میں کروڑوں نہیں اربوں کے مالک بن جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آپ کو نہ دولت ملے گی دنوں میں، نہ ملے گی گھنٹوں میں، اور نہ ہی ملے گی منٹوں میں، بلکہ انشاءاللہ العزیز سینکڑوں میں انشاءاللہ دولت ملے گی۔ یہ ایسا وظیفہ ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، آج آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے سچے دل سے یقین سے صرف ہفتے کو ایک مرتبہ آپ لوگ چلتے پھرتے صرف ایک مرتبہ آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہو میرے بھائیوں میری بہنوں، ایسی آپ کی قسمت کھلے گی۔ آپ لوگوں کو یقین نہیں آئے گا، چاروں طرف سے آپ کو پیسہ رزق آنا شروع ہو جائے گا۔ جو بھائی بہن کہتے ہیں کہ ہماری قسمت خراب ہے، ہماری قسمت میں بالکل پیسہ نہیں ہے، اس وظیفے کو اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہفتے کو اگر پڑھ لو تو ہر ہفتے کا انتظار کرو گے کہ کب ہفتہ آئے اور ہم یہ وظیفہ پڑھیں۔ یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو بدل دے گا، یہ وظیفہ آپ کی قسمت میں پیسہ فوری طور پر لے کر آئے گا۔ اگر آپ آج غریب ہو، اگر آج آپ غربت کی زندگی گزار رہے ہو تو میرے بھائیوں میری بہنوں تو بالکل مایوس مت ہونا، اپنا دل بالکل چھوٹا مت کرنا، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ ایک وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ لینا، آپ کی قسمت میں کہتا ہوں منٹوں میں بدل جائے گی۔ اس وظیفے کو میں نے جس کسی کو بتایا، اگر ہفتے کو اس نے صبح کے وقت یا شام کے وقت یا رات کے وقت پورے دن میں اس نے کسی بھی وقت اس وظیفے کو کر لیا تو میرے رب نے اس کو من چاہا عطا کرا، کیونکہ یہ وہ وظیفہ ہے جو آپ کی دنیا ہی بدل دے گا۔ پیارے دوستوں، آپ لوگ پوری دنیا میں کسی بھی ملک، کسی بھی شہر، کسی کی گلی، کسی بھی کوچے، کسی بھی گھر میں اگر آپ لوگ بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو آپ لوگوں نے فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ لوگ کسی بھی ملک سے ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا، بس بحیثیت مسلمان آپ لوگ ہیں تو آپ لوگ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اول تو اگر کوئی ہندو، سکھ، عیسائی اگر وہ بھی اس وظیفے کو پڑھ لے گا تو اللہ پاک اس کو بھی نواز دے گا، کیونکہ یہ وہ کلمات ہیں، یہ وہ نام ہیں جن کی برکت سے اللہ پاک کبھی بھی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، اور کبھی بھی اللہ پاک ان کی جو محتاجگی ہوتی ہے، جو ان کی خواہش ہوتی ہے، ان کو رد نہیں کرتا، کیونکہ یہ وہ نام ہے کہ جس نام سے لوگوں کی بگڑی بنتی ہے۔ تو پیارے دوستوں، آپ لوگوں نے فکر بالکل نہیں کرنی، آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پورے دل سے، پورے یقین کامل سے اور اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ پیارے دوستوں، اگر آپ لوگ جاب کرتے ہیں، آپ لوگ کام کرتے ہیں تو آپ لوگ اس جگہ پر بھی بیٹھ کر اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کی کچھ شرائط ہے تو لہٰذا اس کو آپ لوگ فالو کر لیں، کیونکہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ تسبیح بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور موبائل بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس طریقے سے نہیں کریے گا۔ پیارے دوستوں، آپ لوگوں نے انتہائی توجہ کے ساتھ دنیا سے کٹ کر آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا مسئلہ سیکنڈوں میں حل ہو جائے گا، کیونکہ یہ وہ مجرد وظیفہ ہے کہ لوگوں کی بگڑی بنی ہے۔ تو پیارے دوستوں، اگر آپ لوگ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ لوگ پریشان حال ہیں، آپ لوگ تنگ دست ہیں، آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، تو آپ لوگ اس وظیفے کو کر لیں۔ میری بات مانیں، ایک بار کر لیں، کوئی آپ کا کچھ نہیں جا رہا، کوئی آپ کا روپیہ پیسہ نہیں لگ رہا، بلکہ یہ وظیفہ تو گویا 3 منٹ یا 4 منٹ کا عمل ہے۔ تو لہٰذا آج کے دن اس وظیفے کو پڑھ کے دیکھیں، آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کو نہ ختم ہونے والے رزق ملے گا، آپ کو عزت بھی ملے گی، کیونکہ پیارے دوستوں آج کل کے معاشرے میں تو یہی دیکھا جاتا ہے کہ جس کی جیب میں پیسہ ہے لوگ اس کو ہی پوچھ رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں تو سگا بھائی، تو کیا آپ کے بچے بھی آپ کو باپ کہنے سے انکاری ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا آج آپ لوگ کسی بھی نماز کے بعد، آپ لوگ چاہے فجر کے بعد، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ اس وظیفے کو کر لیں۔ اگر آپ لوگ اس ہفتے کو نہ کر پائیں، اگلے ہفتے کو کر لیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں اتوار کو کرنا ہے، اتوار کو کر لیں، کسی بھی دن کر لیں، لیکن
वजीफा आप लोगों ने लाजमी करना है और पूरे तवक्कुल के साथ करना है। इंशाअल्लाह जब इस वजीफे को आप लोग कर लेंगे ना तो आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे कि आपको मिल कहां से रहा है। क्योंकि प्यारे दोस्तों ये वो वजीफा है जो दौलत को आपसे मोहब्बत करने पर मजबूर कर देगा। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हुमा के दौर में दो अफराद एक जगह मिलकर रोटी खा रहे थे। एक शख्स के पास 5 रोटियां थी जबकि दूसरे शख्स के पास 3 रोटियां थी। जब वो खाना शुरू करने लगे तो एक तीसरा शख्स आ गया और उनके साथ खाने में शरीक हो गया। तीनों ने मिलकर वो सब 8 रोटियां खा डाली। तीसरा शख्स खड़ा हुआ और दोनों को 8 दिरहम देते हुए बोला, ये खाने का मुआवजा है जो मैंने तुम्हारे साथ खाया है। उसके जाने के बाद दोनों में बहस और टकरार शुरू हो गई। जिसकी 5 रोटियां थी उसने कहा कि मैं 5 दिरहम लूंगा और तुझको 3 दिरहम दूंगा क्योंकि तुम्हारी रोटियां 3 थी। 3 रोटी वाले ने कहा कि मैं निफ से कम हरगिज नहीं लूंगा, यानी 4 दिरहम लेकर छोड़ूंगा। ये झगड़ा इतना तूल पकड़ गया कि आखिरकार अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हुमा के सामने मुकदमा पेश हुआ। आपने दोनों की बयानात सुनकर 3 रोटियां वाले से कहा कि तुमको 3 दिरहम मिलते हैं, ये कम नहीं है क्योंकि तुम्हारी रोटियां ही 3 थी, इसलिए जो मिलता है उसी पर राजी हो जाओ। मुद्दई बोला, मैं अपना हक पूरा लूंगा। आपने फरमाया कि अगर हक की बात करते हो तो तुम्हारे हक का सिर्फ 1 दिरहम है। 3 दिरहम जो तुम्हें मिल रहे हैं तुम्हारे हक से कहीं ज्यादा है। मुद्दई बोला, आपने अच्छा फैसला किया है। 3 दिरहम तो ये शख्स खुद दे रहा था और मैं इस पर राजी ना हुआ और आप फरमा रहे हैं कि तेरा हक 1 दिरहम है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, बेशक तुम्हारा हक सिर्फ 1 दिरहम है। तुम्हारा फरीक तुम्हें 3 दिरहम दे रहा था लेकिन तुमने बात नहीं मानी। अब अगर तुम नहीं मानते तो सुन लो तुम्हारा हक क्या बनता है। मुद्दई ने कहा, हुजूर कोई माकूल वजह बयान कीजिए कि इस तरह मेरा हक 1 दिरहम बनता है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि 8 रोटियां के 3 बराबर टुकड़े करो तो 24 टुकड़े बनते हैं। 24 टुकड़े तुम 3 आदमियों ने खाए हैं। ये तो मालूम नहीं कि तुम में से किसने ज्यादा खाया और किसने कम, लिहाजा फर्ज करो कि सबने बराबर खाया है। तो इस सूरत में तुम तीनों ने 8-8 टुकड़े खाए। सिर्फ तीसरी रोटी से सिर्फ 1 टुकड़ा बचा जो तीसरे ने खाया और तुम्हारे फरीक की 5 रोटियां थी जिनके 15 टुकड़े थे। उसने 8 खुद खाए और 7 तीसरे को खिलाए। अब तुम्हारी 3 रोटियों के 9 टुकड़े का 1 टुकड़ा तीसरे आदमी ने खाया जिसका मुआवजा 1 दिरहम बनता है और तुम्हारे फरीक का मुआवजा 7 दिरहम है। ये फैसला सुनकर मुद्दई बोला कि आपने ठीक फैसला किया है। बेशक मेरा हक 1 दिरहम है और मैं इसी पर राजी हूँ। मोहतरम नाजरीन, ये वजीफा मेरी बहनें मेरे भाई दोनों पढ़ें। अगर एक घर में बहुत सारे अफराद हैं तो 2-3 लोग भी पढ़ लो तो काफी है। घर का एक फर्द भी अगर पढ़ ले तो पूरा घर इंशाअल्लाह बैठकर खाएगा। क्योंकि जो वाकया मैंने आपको सुनाया वो इस वजीफे से थोड़ा मिलता जुलता ही था। क्योंकि जब आज मैं मुताला कर रहा था कि मैं कौन सा वजीफा अपने सामाईन और नाजरीन के पास लेकर हाजिर हूँ तो लिहाजा मेरी नजर से ये वाकया भी गुजरा तो मेरे जहन में एक बात आई कि हम लोग यूं तो बहुत ज्यादा की डिमांड करते हैं। हम लोग मेहनत उस लेवल की नहीं करते लेकिन हमारी डिमांड्स बहुत ज्यादा होती हैं। तो अगर हम लोग इस तरह करें कि हम लोग अपनी डिमांड्स को कम कर लें और अल्लाह पाक के दिए हुए थोड़े से रिस्क पर राजी हो जाए तो क्या वो ज्यादा ना करेगा? क्या वो बढ़ाएगा नहीं? बिल्कुल बढ़ाएगा। ये सब तवक्कुल की बात है। ये सब अल्लाह पाक से राजी होने वाली बात है। तो प्यारे दोस्तों, अब अमल की तरफ चलते हैं कि आप लोगों ने वजीफा किस तरीके से करना है। सबसे पहले आप लोग पढ़े अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक बार पढ़ लें।
उसके बाद आप लोगों ने पढ़ना है दुरूद पाक। दुरूद पाक मैं आपसे बारहा कहता हूं कि दुरूद इब्राहिमी का ही इंतखाब करें, क्योंकि ये वो दुरूद है जो इंतहाई मुजर्रब है। एक बार हुसूल बरकत के लिए मेरे साथ भी पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद 2-3 छोटे छोटे से वज़ाइफ है, आप लोगों ने इस वजीफे को आप लोगों ने इकट्ठा ही पढ़ना है। आप लोगों ने फिक्र नहीं करना, इंतहाई छोटे छोटे वजीफे हैं। बस आप लोगों ने आराम आराम से, जिस तरह से मैंने एक किरत के अंदाज में हम दुरूद पाक पढ़ के आपको सुनाया, इसी तरीके से आप लोग आराम आराम से थोड़ा चस लेते हुए इस अमल को, इस वजीफे को करेंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इस वजीफे की आप लोगों को खास इजाजत मिल जाए, वीडियो पूरी देखें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट के अंदर अपना नाम लिख दें, इंशाल्लाह आपको इजाजत मिल जाएगी। अब प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने किस तरीके से करना है अमल को जरा आप लोग मुलाहिजा कर लें। सबसे पहले नंबर पे जो आप लोगों ने वजीफा पढ़ना है वो है अल्लाह पाक का एक जाती नाम और एक सिफाती नाम, यानी कि या अल्लाहु या रहमानु, इन दो नामों को इकट्ठा पढ़ना है। और पढ़ना किस तरीके से है मुलाहिजा करें। या अल्लाहु या रहमानु ये एक हुआ, या अल्लाहु या रहमानु ये 2 हुए, या अल्लाहु या रहमानु ये 3 हुए। प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, आराम आराम से 3 बार ही आप लोगों ने ये पढ़ना है या अल्लाहु या रहमानु, जिस तरीके से 3 बार मैंने आपको पढ़ के सुनाया। और दूसरे नंबर पे आप लोगों ने कौन सा वजीफा करना है, दूसरे नंबर में भी आप लोगों ने अल्लाह के 2 नाम, एक मेरे रब का जाती नाम और एक मेरे रब का सिफाती नाम, यानी कि या अल्लाहु या करीमु, या अल्लाहु या करीमु, इन दोनों नामों को इकट्ठा पढ़ना है और सिर्फ 7 बार पढ़ना है। यानी कि या अल्लाहु या करीमु 1 हुआ, या अल्लाहु या करीमु ये 2 हुए। इसी तरीके से आप लोग अल्लाह पाक के ये 2 सिफाती नाम, एक जाती और एक सिफाती, इसको आप लोग 7 बार पढ़ लेंगे। उसके बाद जो आप लोगों ने तीसरे नंबर पर छोटा सा वजीफा पढ़ना है, वो छोटा सा वजीफा बहुत ही खास है और इस वजीफे को पढ़ने के बाद आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा। लिहाजा आप लोगों ने कौन से 2 नाम पढ़ने हैं, या मोहम्मद या अलीयू, आपने इन 2 नामों को इकट्ठा पढ़ना है। और किस तरीके से पढ़ना है, या मोहम्मदू या अलीयू 1 हुआ, या मोहम्मदू या अलीयू ये 2 हुए। इसी तरीके से आप लोग तीसरी बार भी पढ़ेंगे या मोहम्मदू या अलीयू। ये वजीफा मेरे प्यारे भाइयों मेरी प्यारी बहनों मेरे बुजुर्गों, या मोहम्मद या अली जो वजीफा है, इस वजीफे को आपको सबसे आखिर में पढ़ना है। इस वजीफे को मेरे भाइयों मेरी बहनों आप लोगों को 21 मरतबा पढ़ना है। और जब आप लोग 21 मरतबा इस वजीफे को पढ़ ले तो उसके बाद आप लोगों ने दोबारा से दुरूद पाक पढ़ लेना है। जो दुरूद इब्राहिमी आप लोगों ने अव्वल पढ़ा, वही दुरूद इब्राहिमी आप लोग आखिर में भी पढ़ लेंगे। इंशाअल्लाहुल अजीज आपका अमल, आपका वजीफा मुकम्मल हो जाएगा। अब आप लोगों ने हाथ उठा के अल्लाह पाक से आप लोगों ने जो सवाल करना है आप करें। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत को, आपकी हर मकसद को इंशाअल्लाह पूरा कर देगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का अमल, आज का वजीफा आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और हमारे इस वजीफे को, हमारी इस वीडियो को, हमारे इस दर्स को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।